A very good morning to all class 10th students. I am back with a revision video for you for your exams, and in this revision video I will take a quick recap of the important points of the chapter Nationalism in India. Nationalism in India is a very important chapter consisting of many aspects and also the map work that is required for you to get good bands. A good ray of hope is coming that the schools I think are getting reopened very soon. So I'll be able to teach you in class very soon, I guess. But before that, I am teaching you for your revision work, and this revision work is that we are beginning with the Indian national movement from 1905 onwards with the partition of Bengal. But before that, I will just tell you one thing, that as you all know that with the formation of Indian National Congress in the year 1885, the first 20 years of Congress were taken over by or were led by the moderate leaders like Dada Bhai Nauroji, Gopal Krishna Gokhale and Surendranath Banerjee. Then afterwards, 1905 se an era came when the moderates were rejected by people, or the policies of moderates were not liked, and Congress was taken by the extremist leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai. All these leaders took over the Congress. So let's check what are the reasons behind the rise of extreme nationalism. Means लड़ो मरो वाली स्थिति क्यों आई? Extreme nationalism, why it came into force? What was the reasons behind extreme nationalism? First reason was that the moderates were unable to achieve the aim of the people and the Congress. जिस एम के लिए कांग्रेस बनी थी, जिस एम को अचीव करने के लिए कांग्रेस बनी थी, दैट एम was not fulfilled by the people, being moderate. Second, the moderates did not do anything against the oppressive policies of the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? लाठी से ठुकवाती थी, अच्छे से लाठियाँ चलवाती थी और हाथ पैर हड्डियाँ तुड़वा देती थी. तो ऑप्रेसिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, they were also very dangerous for the people, and these people were very annoyed कि moderates कुछ बोलते ही नहीं थे. वो कहते थे चलो सह लो, हमें सह के ही रहना है और हम मारेंगे नहीं, हम पीटेंगे नहीं और हम चुपचाप बात करेंगे. लोगों ने कहा बात करने का सिस्टम खत्म. पार्टीशन ऑफ बंगाल, द बिगेस्ट, I would be saying the biggest spark was due to the partition of Bengal. Partition of Bengal, what it did one thing, that it aroused the feeling of extreme nationalism among the people. Extreme nationalism among the people was aroused by partition of Bengal. लोगों ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या कर रही है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है और ये हम नहीं सहने देंगे. जब उन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल करके, तब लोगों ने कहा कि अब तो ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं. चौथा मेजर पॉइंट एक्सट्रीम नेशनलिज्म के पीछे जो था, दैट वाज कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तुमको पता है सारी फैक्ट्रियां, सारी मिल हिंदुस्तान की बंद होने के कगार पे थी. लोगों पे काम नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे. ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा कर रहे थे, हमसे सस्ते में सामान खरीद के विदेशों में, अपने इंग्लैंड में उसको बनवा के कपड़ा, और वही कपड़ा हमें बेचते थे.
वही तरह हमारे स्पाइसेस को रिफाइन करके हमें वापस देते थे और हमारे ट्रेडर्स को ख़त्म कर रहे थे, हमारे बिजनेसमैन को ख़त्म कर रहे थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म कर रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स का एट द पीक था, इट वॉज एट द पीक। दिस वॉज अनदर रीज़न ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लड़ाई झगड़ा करने के लिए अब लोग तैयार इसलिए हो गए। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल, बाल एंड पाल। दिस थ्री, द ट्रायो ऑफ लोकमान्य तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, दे वर पॉपुलरली नोन एज लाल, बाल एंड पाल। ये इतने पॉपुलर थे क्योंकि इन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे हाथ और पैर से, तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, ठीक। तो इनकी बातें यूथ को स्पेशली बहुत समझ में आई और यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। यूथ ने कम्प्लीटली कहा कि अब एक्सट्रीमिज्म ही फॉलो होगा, वी शुड गिव वे टू अदर्स, वी शुड गिव वे टू द पीपल ऑफ इंडिया, और अब हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। लाल, बाल, पाल ही हमारी ग्लोरी को वापस ले आ सकते हैं, लाल, बाल, पाल ही देश को आज़ाद करा सकते हैं, और एक्सट्रीम नेशनलिज्म ही एक तरीका है। अब बातचीत करने से बात नहीं सुधरेगी, ठीक है। तो ये था, ये 5 पॉइंट्स थे जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट्स। मॉडरेट्स एंड nationalists. The moderates believe in the adoption of constitutional and peaceful methods. जो moderates थे वो peaceful बात करते थे, constitutional बात तरीके से बैठ के हल निकालना चाहते थे, while the nationalists favor the use of force. पहला रीजन था बातचीत करनी नहीं, ताकत का इस्तेमाल करना है। एक्सट्रीमिस्ट लाल, बाल, पाल इसको यूज़ करते थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग इस तरीके से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉलो कराना चाहते थे मॉडरेट्स, कहते थे धीरे धीरे हम इनकी ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमें धीरे धीरे काम देंगे, हैं। और ये सोच थी मॉडरेट्स की कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम करके धीरे धीरे तरक्की करेंगे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल भी इसके ऑपोजिट सोच के थे। दे वुड बिलीव दैट ब्रिटिशर्स के हाथ में तो कभी हमारी तरक्की है ही नहीं, हमें इन्हें भगाना ही पड़ेगा, हम अपना काम अपने हाथों से करेंगे, हम किसी के गुलाम बन के काम नहीं करेंगे, हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हमारे बिजनेस तब फलेंगे फूलेंगे जब हमारे हाथ में पावर होगी। बन गया। थर्ड मेजर पॉइंट था, द मॉडरेट्स ने कभी भी ब्रिटिश रूल को एंड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स के साथ समझौता करके ये हमें रूल करे, लेकिन हमें भी अपना काम करने दें, जबकि एक्सट्रीमिस्ट हमेशा से ब्रिटिश रूल को क्या कहते हैं, एंड करना चाहते थे। उन्होंने कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए बाद में पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के सेशन में 1928 में पूर्ण स्वराज का भी नारा दिया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल कांग्रेस का, ठीक। फोर्थ पॉइंट मॉडरेट्स का क्या था, मॉडरेट्स को वेस्टर्न कल्चर से एलर्जी नहीं थी, वो विदेशों में पढ़ने में भी तैयार थे, विदेशों में इंग्लिश सीखने को भी तैयार थे, उनसे सीखने को भी तैयार थे, क्योंकि वो पार्ट बनना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वो सोचते थे कि ठीक है हम लड़ नहीं सकते इनसे, हम इनसे पार्ट बना के अपने काम बना सकते हैं। वाइल एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट लाइक द मॉडर्न कल्चर और द वेस्टर्न कल्चर एट ऑल, दे पॉपुलराइज द इंडियन कल्चर, दे हैड ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द सुपरमेसी ऑफ इंडियन कल्चर। और एक थी, कभी भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो मॉडरेट्स थे, इनको परसिक्यूशन नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको कभी भी प्रताड़ना नहीं दी, जेल नहीं भेजा, मारा पीटा नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से बात करते थे, जबकि इनके बात करने से ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो लोगों को उसी तरीके से अत्याचार करते थे। और लाला लाजपत राय, लाल, बाल, पाल जो थे, उनको कई बार ब्रिटिशर्स ने मारा भी, कई बार पीटा भी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो एक्सट्रीम वायलेंट मेजर्स को यूज़ करके इंडिया को फ्री करना चाहते हैं।
So these were the two basic reasons. I'll continue with the partition of Bengal and the emergence of Gandhiji also. So some revision videos will follow in the upcoming days also.